Good morning, students. A very good morning to all of you. Uh, Today we will study about the utility analysis, consumer equilibrium, and with one good. Utility analysis is one of the best part of the economics, and it also we are to study on the consumer equilibrium, which is studied by Marshall. Marshall is associated with the utility analysis. Some few points I will discuss with you. Regarding the utility analysis and consumer equilibrium, students, very important part, and I will study the details in a study on the topic. Uh, Somewhat I want to discuss in Hindi also because it is some student demands to discuss the questions, answer, and the topics in Hindi. Students, you see here that the common types of utility bills here in the left side, right side on the screen. Electricity, gas, water and sewage, and trash and cycling, internet and cable, phone. You know that these are the utility part, and you can see here. I am going to mark on with the pen also. Okay, pen. I am using the pen. I will take the green pen because red has written already on black pen. I will taking. So you will see here electricity, gas, water, sewage, and the trash. These are some of these are having utilized by us also. So what is utility? You know that utility is the one satisfying nature of the good. Utility is you can see wants satisfying nature of the good is called utility. Okay, students, these are very important part. Learn in one line. One satisfying nature of the good means those goods which satisfy our wants, they have utility. Simple things. So will be studied. This will be very important for you in the examination also. So go for proper study and take help from this slide also. This expression. Next topic is the utility written here already. One satisfying nature of the good. Okay. So first of all, learn the definition. What is one satisfying? Then see utility. A term in economics that refers to the total satisfaction or benefits from the consuming a good or services. That is called utility. Very good. It is very important. And then you are to there are two part, that is total and marginal utility. So here total utility is the aggregate summation of satisfaction or fulfillment that a consumer receives through the consumption of goods or services. That is called total utility. TU. TU means TU means summation of all the utilities. TU means you can see here uh, TU writing on the top side. TU means TU means summation of summation. Okay. Once again, I'm reiterating the point because it has been remarked wrongly. TU means TU equal to summation of other all the utilities. Okay. So you have to study this also, very important part. Summation of all utility is called total utility. Then what is marginal utility? Marginal utility means the added satisfaction that consumers gets from having one more unit. Means TU means MU means if you go for MU, where is MU?
mu equal to summation each one additional utility getting by consuming one more good. Okay, so here you can see mu equal to tu n minus tu n minus 1. That is the uh, mu. Understood, students? So these are the formulas. You can write tu also in the following ways. Tu equal to sigma sigma mu. This is the tu equal to sigma mu. Very important part. So this will be important. Next, you can see here cardinal treaty. There are two parts of the treaty. The one is cardinal, one is ordinal. So cardinal treaty satisfaction level after consuming one or good which can be scaled in number of countable numbers, which is scaled in terms of countable numbers. That is called cardinal treaty. Next, ordinal treaty, an economic theory that ranks consumer preference rather than measuring satisfaction with numbers. It is a qualitative approach that assumes consumers can rank their preference but can't measure how they prefer one option to another. मतलब इसको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते जी, इसको केवल हम प्रेफरेंस कर सकते हैं, एक प्रेफरेंस दो प्रेफरेंस कर सकते हैं, इस चीज को ऑर्डरिटी कहते हैं, ऑर्डरिटी को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से एक बार और मैं बता देता हूँ, देर आर टू ग्रेट इकोनॉमिक्स हु हैव डिफरेंट ओपिनियंस फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। दो इकोनॉमिस्ट थे, एक मार्शल थे, एक हिक्स थे। मार्शल believes that we can measure utility or satisfaction in terms of cardinal number। मैंने मार्शल ने कहा था कि इसको हम cardinal में काउंट कर सकते हैं, मैंने cardinal utility में इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने गिन utility को काउंट कर सकते हैं, इसका सिंबल यूटिल होता है, ठीक है। क्योंकि जीआरएक्स ने कहा था कि नहीं ऐसा काउंट नहीं कर सकते। इट बिलीव्स दैट सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, किसी ज्यादा मिल रहा है किसी लो मिल रहा है, इससे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूटिल में यूनिट में हो सकता है या यूटिल में हो सकता है, लेकिन इसको हम काउंट रैंक कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इसको हम यूटिल में कहीं लिख सकते हैं, यूनिट में नहीं कर सकते कि वन यूटिल मिला, टू यूटिल मिला, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये बोला था जारिक्स थे। तो ये लोग कौन कौन थे? देखो ये अल्फ्रेड मार्शल थे, इनका शक्ल देख लो, है ना। और दूसरे थे जे आर हिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स फेमस इकोनॉमिक्स दोनों थे। तो ये थे लोग दोनों का आप समझ गए। ये जो थे ध्यान रखो, ये जो थे ये इन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस दिया था, और ये जो थे ये क्या थे, इन्होंने दिया था ऑर्डर अप्रोच, है ना। इधर वालों ने ये कॉर्डल अप्रोच, ये सब लोगों ने दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट है पार्ट, है ना, इसको समझ लेना। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी। देखो डिमिनिशिंग माने क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है, घटना, डिक्रीज करना। तो डिमिनिशिंग माइनॉरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो। डिमिनिशिंग माइनॉरिटी द यूटिलिटी दैट इज measured by consuming one goods, more goods, many types, that is the diminishing maturity. It states that the additional satisfaction gained from consuming more of a product or service decreases as consumption increases। जैसे जैसे हम किसी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी का कंजम्पशन इंक्रीज करते जाते हैं, जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है क्या होता है, घटता जाता है। जैसे हमने क्या बताया कि अगर हम प्यास लगी है, ग्लास का पानी पी रहे हैं, तो एक गिलास पिए तो खूब खूब भूख लगा तो एक गिलास पानी पी लिए, दूसरा गिलास में थोड़ा सा पानी का पीने की इच्छा कम हो जाती है, फिर उसके बाद फिर तीसरा गिलास, तीसरा चौथा गिलास, बार बार पीने से क्या होता है कि इच्छाएं कम होती जाती है, और इस तरीके से क्या होता है हमारा यूटिलिटी घटती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि हमको फिर पीने का मन ही नहीं करता है, यानी कि एकदम पूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाता है। दिस मीन्स दैट मोर ऑफ समथिंग यू कंज्यूम, देखो ध्यान से इसमें लिखा हुआ है, मोर ऑफ समथिंग यू कंज्यूम, है ना, लेस सेटिस्फेक्शन यू गेट। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, लेस होता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये एग्जाम में आता है। अगर यूटिलिटी भी काउंट करें, देखो ध्यान से इसमें एक चीज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, अगर हम कंज्यूमशन से ऊपर एक जीरो किए तो हमारे पास कुछ नहीं यूटिलिटी मिला,
अगर पहला यूनिट किए तो हमको यूटिलिटी थोड़ा सा 10 मिला, मैंने 10 यूनिट का हमको यूटिलिटी मिला, यूटिलिटी 10। दूसरा कंज्यूम किए तो हमको 8 यूटिलिटी मिला। तीसरा किए तो हमको जो है 6 मिला। चौथा किए तो हमको 4 मिला, यूटिलिटी घट जा रही है। पांचवा किए तो हमको जो है 2 मिला। और छठा किए तो हमको 0 कुछ नहीं मिला। सातवां किए तो हमको जो है यूटिलिटी घट गई। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे, 0 में 0 प्लस इसमें 10 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ो, और 10 में फिर 10, ये 10 आ गया तो 10 में फिर 8 जोड़ो, 8 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पर आ गया, 18 से फिर 6 जोड़ दो, 6 हो गया। 6 को हम ऐड करेंगे, 6 भी 6 आ गया, मैंने 6 करेंगे तो ऐड 24 आ जाएगा। 24 से फिर 4 ऐड करेंगे, 28 आएगा। फिर 28 यहाँ रखेंगे, फिर 28 से 2 रखेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। देन 30 आ जाएगा, 30 से फिर ये 0 ऐड करेंगे तो 30 जगह तो रहेगा। फिर इसमें जो -2 ऐड करेंगे तो आपको घट जाएगा, यानी कि यूटिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस। समझ पा रहे हो स्टूडेंट? इसको ध्यान से पढ़ना। इसका देखो, जब इसको हम ग्राफ पर शो करते हैं, जब ग्राफिकल हम शो करते हैं तो इसमें ध्यान रखो, ये जो ग्राफ बनता है यहाँ पर देखो, ये पहला 0 पर 0 था, ये देखो 0 पर 0 है, ये दोनों 0 पर 0 है ना, 0 टोटलिटी। एक पर था आपका 10, एक पर 10 था। 2 पर कितना है, 2 मिलाओगे इसको, ऐसे देखो मिलाया गया। 2 पर कितना है, 2 पर 18 है, तो देखो 18 लम्स में ही पड़ेगा 18, ठीक है। तो 18, 18, देन हियर ऑन 2 यूनिट्स, then there is 24. 24 is above 20, 20, that is there will be this line, and on third unit you are consuming, there is a 24 utility. जब हम फोर्थ यूनिट यूज करेंगे तो 28 हो जा रहा है, थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी 30 के बिलो हो जाएगा, ठीक है। 30 बिलो यहाँ पर आ जाएगा 24 को, और फिफ्थ यूनिट में 30 आएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें 30 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और फिर इसका फिर 30, 6 पर 330 आएगा, 6 पर 330, तो ये 30 आ गया। और फिर 7 पर 28, तो यहाँ पर 28 लम्स यहाँ पर करेंगे, 28 आएगा, ये TU हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हो? तो ये लाइनिंग जो था, देखो ध्यान से, यहाँ से लाइनिंग बना, ये लाइनिंग बना, ये TU लाइन है। अब इसी का नीचे देखो, ये जो है ये नीचे आएगा। फर्स्ट पर क्या था, 10 था, फर्स्ट पर 10। सेकंड पर क्या था, 8 था। 8 is somewhat downside here, 8 here, ठीक है। इसके बाद 3 पर क्या था, 3 पर देखो, 3 पर आपका 6 था, 3 पर 6 यू कैन फाइंड आउट हियर, टिक लगा दे रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। 4 पर क्या था, 4 पर 4 था, यू कैन गो फॉर 4 हियर इन बिटवीन 2 और 6 के बीच में। एंड 5 पर 2 था, 5 पर 2, तो 5 पर 2 आपको लमसम यहाँ पड़ेगा, ठीक है। एंड 6 पर 0, 6 पर 0 आ गया था, ठीक है। और 7 पर -2, यहाँ पर ये लाइनिंग खींचेंगे, ये तरह का आएगा, तो इसको बोलते हैं एमयू, ठीक है, ये एमयू हो गया। तो एमयू इज गोइंग टू डिमिनिश बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ वन को गुड। ध्यान से स्टूडेंट पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्शल का, इसको थॉम्स लॉ भी बोलते हैं, थॉम्स लॉ, है ना। When consumer equilibrium will reach and with one good, when marginal utility derived from each last unit of the good is equal, ठीक है।
जब हम कोई भी चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं तो हमारा माइग्रेट घट जाता है, लेकिन हम उसके लिए प्राइस पे करते हैं। जब हमारा प्राइस, जो प्राइस को हम काउंट करते हैं, मन में रखते हैं कि प्राइस हमारा इतना हुआ, 10 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, जो भी प्राइस होता है, वो प्राइस का और हमारी इक्विटी बराबर हो गया, तब तक वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अब सपोज रखो कि प्राइस में 10 रुपया का हमारा, हमको उतना फायदा नहीं मिल रहा है उस चीज को यूटिलिटी करने से, कंज्यूम करने से, तो हम क्यों खरीदेंगे? तो जैसे 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 ही वो प्राइस और यूटिलिटी बराबर हो गया, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, और जैसे ही घटने लगा यूटिलिटी, कंज्यूमर वहाँ क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ इज जस्ट एनफ टू ऑफसेट इट्स कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट को मेजर करता ही है, ठीक है ना, कि कितना कॉस्ट हुआ। मतलब कि जब हम किसी चीज को आए, कंज्यूमर गेट्स सेटिस्फेक्शन, है ना, कंज्यूमर रिचेज इक्विलिब्रियम इन वन गुड व्हेन माइनॉरिटी derived फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ द गुड इज इक्वल। ध्यान रखना, ये लाइन अच्छा से याद करना, ये वाला लाइन, ये जो लाइनिंग दिया हुआ है, या व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी, इसको रेट से मैं करता हूँ, रुको रुको, ये तो रेट से करता चलेगा, रेट, when the marginal utility derived from last unit of that good consumed is equal, that is called consumer equilibrium। ठीक है, इक्वल टू द प्राइस, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, इसको बना सकते हो, हमने बनाया था इसको, आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट यूटिलिटी में क्या हुआ, फर्स्ट अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको 30 का हमारी यूटिलिटी मिल रही है, और हमारा प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, मान लो 10 रुपया है। सेकंड कर रहे हैं तो उसमें 20 का हो रहा है, प्राइस हमारा 10 रुपये ही है, ठीक है। थर्ड का कर रहे हैं तो हमारा जो ये यूटिलिटी क्या है, थर्ड का यूटिलिटी घट के 10 हो गया, ठीक है ना, लेकिन प्राइस कितना है, प्राइस 10 रुपया हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये प्राइस यूटिलिटी दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर देखो ध्यान से, ये ऊपर एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पर एम यू एक्स ज्यादा है पी एक्स से, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स बराबर हो गया, तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और नीचे जाओगे जब तो घटता जाएगा, नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पर प्राइस से, यहाँ से प्राइस से घट रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसको ध्यान से रख पढ़ना, शेड्यूल आता है कभी कभी। अब इसे देखो डायग्राम में, डायग्राम बना दिया 30 25, तो इसको देखते हो, यहाँ पर इस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है। तो इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसको अपने से बार बार बनाना एग्जाम में, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स में कुछ एजम्पशन भी होता है, ऐसा नहीं कि मैंने हर जगह पे ये लॉ काम करेगा, है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, में कुछ एजम्पशन होता है। अब जैसे कंज्यूमर है फिक्स्ड इनकम, कंज्यूमर का इनकम फिक्स्ड हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 10 रुपए से 5 रुपया घट गया, 5 रुपया, फिर कभी 20 रुपये से कुछ नहीं है, इनकम ऐसे फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इंटायर इनकम ऑन द गुड, और अभी उसी इनकम को, उसी गुड को खरीदने में इंटायर इनकम को खर्च करता है, ठीक है ना। तो ये द प्राइस ऑफ द गुड इज फिक्स्ड, प्राइस है फिक्स होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर बेवकूफ नहीं, रेशनल होना चाहिए, है ना। और वांट्स जो होता है उसको हमेशा मैक्सिमाइज करता हूँ, तो ये ध्यान रखना। तो 3 4 पॉइंट ही लिखोगे अगर जब में, तो काम में आ जाएगा। तो आज इतना ही था, थैंक यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आप अगर समझ जाओगे, इसको बार बार लिखोगे, कोई पर समझोगे, तो कुछ ही समय, कुछ ही लाइन में आपको याद हो जाएगा और ये काम में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो या इसको, और शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू ऑल।